Dear students, today we will be explaining you in Urdu the third part of the lesson, The Rat Trap by Salma Negerlo. तो हमने देखा कि जो आयरन मास्टर था वो इस अजनबी को घर लेने के लिए तरगीब देने लगा, लेकिन उसने नहीं माना और वो वहाँ से चला गया. ना उससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 37, लास्ट बट one para, last but two para. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the ironmaster. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने भट्टी के बाहर बगी की आवाज़ सुनी और एक नया मेहमान अंदर आ गया. लेकिन उस वक्त आयरन मास्टर खुद नहीं आया था, उसने अपनी बेटी को भेजा था. शायद उसे उम्मीद थी कि वो उससे ज़्यादा दूसरों पर गालिब आने की सलाहियत रखती है. She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. वो अंदर आ गई, उसके पीछे उसका एक नौकर भी था, यानी वायलेट हम मेल सर्वेंट को कहते हैं, जिसने अपने बाजू पर एक बड़ा फर का कोट रखा था. वो लड़की बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो शाइस्ता और शर्मीली मालूम होती थी. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. भट्टी में हर चीज़ उसी तरह थी जिस तरह पहले शाम के वक्त थी, जिस वक्त इस लड़की का बाप आया था. बड़ा लोहार और उसका मददगार अभी भी बेंच पर बैठे थे और लोहा और कोयला अभी तक भट्टी में चमक रहे थे. The furnace, the stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under the head and his hat pulled down over his eyes. अजनबी ने अपने आप को फर्श पर फैला दिया था, यानी वो लेटा हुआ था. उसने सराहने के तौर कच्चे दांत का एक टुकड़ा रखा था और अपनी हेड को, कर्व्ड हेड जो टीडी हेड थी, उसको अपनी आंखों पर सरक कर रखा था. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. जो इन जवान लड़की की नज़र उस पर पड़ी, वो उसके पास आई और उसकी आंखों से हैट उठाई. वो आदमी एक आंख खुली रख कर सोने का आदी था. वो अचानक उछला और काफ़ी खूबसूरत दिखाई देने लगा. My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, जवान लड़की ने कहा. मेरे वालिद ने घर आकर बताया कि आप भट्टी में आज रात सोना चाहते हैं. फिर मैंने उससे यहाँ आने की इजाज़त मांगी ताकि आपको घर ले सकूं. कैप्टन, मुझे बहुत दुख है कि आप इतने मुश्किलात से गुजर रहे हैं. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. लड़की ने उसकी तरफ भारी आंखों से रहमदिली की नज़रों से देखा. उसने देखा कि आदमी बड़ा डरा हुआ है. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. उसने जल्दी से इस आदमी से कहा, आपको यकीन होना चाहिए कि आपको वहाँ से जाने की उतनी ही आज़ादी होगी जितनी आज़ादी से आप वहाँ आएंगे. आप मेहरबानी करके सिर्फ हमारे साथ क्रिसमस के मौके पर रुकिएगा. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने ये बातें इतने दोस्ताना लहजे में कहीं कि चूहों के पंजे बनाने वाले को उस पर पूरा एतमाद महसूस होने लगा.
It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. उसने उसे कहा, मेरे मिस, मेरे साथ कभी ऐसा वाक़ा पेश न आता कि आप खुद को मेरे लिए या मेरे साथ ज़हमत दें, मैं फ़ौरन आपके साथ रवाना होता हूँ. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmiths so much as a glance. उसने फर का कोट कबूल किया जो नौकर ने झुक कर उसे पेश किया. उसने इसे अपने फटे हुए लिबास के ऊपर डाल दिया और जवान लड़की के पीछे बग्गी की तरफ चल पड़ा. उसने हैरान और परेशान लोहारों की तरफ नज़र उठाकर भी न देखा. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. लेकिन जब वो बग्गी में सवार था तो वो बहुत ही बेचैनी से सोच रहा था. Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. मेरी बदकिस्मती, क्यों मैंने उस आदमी की रकम चुराई. अब मैं एक पिंजरे में बैठा हुआ हूँ जिससे मैं कभी बाहर न निकल सकूँगा. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस था और जब आयरन मास्टर नाश्ते के लिए खाने के कमरे में आया, उसने शायद अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड की खुशी और इत्मीनान के लिए सोचा जिसके साथ वो अचानक मुलाकी हुआ था. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. उसने अपनी बेटी जो खाने की मेज़ पर मसरूफ़ थी से कहा, हमें पहले देखना होगा कि हमारे मेहमान को अच्छा खाना मिलना चाहिए. उसके बाद हमें देखना होगा कि उसे कोई काम मिलना चाहिए ताकि उसे चूहों के पंजरे बेचने से नजात मिल जाए. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. उसकी बेटी ने जवाब दिया, ये अजीब बात है कि उसके लिए इतना बुरा वक्त आया है. बीती रात मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह आदमी कभी पढ़ा लिखा भी था. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. उसके वाले ने जवाब दिया, मेरी बेटी, आपको सब्र करना चाहिए. जो ही वो नहला दहला कर आएगा और साफ सुथरा लिबास पहनेगा, आपको वो बहुत ही मुख्तलिफ दिखाई देगा. बीती रात वो फितरी तौर पर अजीब और शर्मीला लग रहा था. उसके दर बदर घूमने की इखलाक उसके फटे पुराने कपड़ों के बाहर निकलते ही ख़त्म हो जाएंगे. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. जो ही उसने ये कहा, दरवाज़ा खुल गया और उसी वक्त अजनबी अंदर आ गया. अब यकीनन हकीकतन साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the ironmaster. He wore a white shirt and a stretched collar and whole shoes. नौकर ने उसे नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे और उसकी दाढ़ी बनाई थी. उसके अलावा वो आयरन मास्टर का अच्छा सूट पहने हुए था. उसने एक सफ़ेद शर्ट और एक सख्त कॉलर और मुनासिब फिट जूते पहने थे. But although his guest was now so well groomed, the ironmaster did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अगरचे उसका मेहमान बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा था, आयरन मास्टर खुश दिखाई नहीं दे रहा था. उसने उसकी तरफ तेवरी भरी माहती के साथ देखा और ये बात आसानी से समझी जा सकती थी कि जब उसने इस अजनबी को भट्टी की गहरी की रोशनी में देखा था पहली बार, उससे पहचानने में गलती हुई थी. लेकिन अब जबकि वो दिन की खुली रोशनी में
उसके सामने खड़ा था तो अब उसे एक पुराना आशना जान पहचान वाला समझने की गलती करना नामुमकिन बात थी। What does this mean? He thundered. आयरन मास्टर ने उससे गरजती हुई आवाज़ में पूछा, इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor has come to an end. अजनबी ने धोखा देने की कोई कोशिश नहीं की। उसे ये बात समझ में आई कि उसकी खूबसूरत बनावट का इख्तिताम होने वाला है। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. उसने कहा, जनाब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी एक गरीब ताजिर होने के सिवा कोई और होने का बहाना नहीं किया, और मैंने आपसे इल्तिजा की थी और हाथ जोड़कर कहा था कि मुझे भट्टी में ही रहने की इजाज़त दी जाए। अभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ है। सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि मैं दोबारा अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहन लूँ और यहाँ से चला जाऊँ। द ट्रैम्प took a step forward and struck the table with his fist. तो ये जो अजनबी है वो एक कदम आगे बढ़ गया और टेबल को, जो मेज़ था, उस पर अपनी मुट्ठी से ज़ोर से